they thought of this plan and they were successful in this plan. By mistake, video has been stopped. Friends, I am sending you the new video, that's why. So now test your grammar skill. There are two ways of saying the same thing. She is very proud. She is as proud as peacock. So such an expression जिसमें as और like यूज होता है वो simile है. Simile is nothing but a comparison. She is very proud. She is as proud as peacock. तो इसको simile बोलते हैं. Match the given expression to their correct meaning. As busy as a bee, तो very industrious. As brave as a lion, very brave. As strong as an ox, very powerful. As quick as lightning, page number 133 only दोस्तों. As quick as lightning, exceedingly rapid. As dead as a doornail, completely lifeless. As plain as a pike staff, quite obvious. As cunning as a fox, very cunning. As fit as fiddle, extremely well. As quiet as mouse, very still. As hungry as a horse, very hungry. So ये सिमिली आपको आशा करती हूँ दोस्तों समझ में आ गया है. ऐसे ही कुछ सिमिली नेक्स्ट पेज पे है, तो प्लीज़ टर्न ऑन पेज नंबर 134. So page number 134, question number 2. As sweet as sugar. As clear as crystal. As clear as water भी लिख सकते हैं दोस्तों आप. As clear as crystal. As easy as eating. As poor as rat. As thin as twig. As soft as wool. As tall as giraffe. As huge as mountains. As swift as squirrel. As smooth as quill. Now this is the part of similes. You can add many more similes like as black as charcoal, as active as a squirrel भी बोल सकते हैं, active रहती है squirrel. So like that you can add many similes to it. Now let's see what you have with fun with vocabulary. So fun with vocabulary, you have this time homophones. So दोस्तों homophones are the words that sound the same but have different meanings and spellings. Let's see what examples they have given for homophone. Fir and fur they have given. This is little pronunciation is different, but mostly you get confused between fir and fur. Fir is a tree, fur means hair. This land abounds with fir tree. The belt and gloves are made up of fur. Ceiling and ceiling. CEILING. Ceiling means inner roof. छत, अंदर की जो छत रहती है ना उसको सीलिंग बोलते हैं. सीलिंग पे पंखा लगा हुआ रहता है. We fit the fan in the ceiling. Ceiling, CALING. Ceiling means whenever you make fraud या आप कोई गलत काम करते हो तो गवर्नमेंट आपके घर को या ऑफिस को सील लगा देती है, म्हणजे वहाँ से काम नहीं हो सकता फिर. तो दैट इज सीलिंग. स्टेयर, STAIR. स्टेयर मीन्स फ्लाइट ऑफ स्टेप्स. सीढ़ी को अपन स्टेयर बोलते हैं, सीढ़ी चढ़ना. STARE. स्टेयर म्हणजे घूर घूर के देखना, टू लुक इंटेंटली. Do something wrong, our parents stare at us. I have to climb stairs to reach my room. Like that you can form the sentences also. So these are the examples of homophone. You have to write the homophones for the given word. जैसे कि PRINCIPLE principal, तो it will be PRINCIPAL principal. पहले प्रिंसिपल जो प्रिंटेड है उसका मतलब होता है सिद्धांत, और जो प्रिंसिपल PAL है उसका मतलब होता है मुख्य अध्यक्ष. थ्रोन, THRONE. थ्रोन
का होमोफोन है THROWN थ्रोन। THRONE थ्रोन का मतलब होता है राजगद्दी। THROWN थ्रोन का मतलब होता है फेंकना। SOLE सोल का मतलब होता है ये जो पैर की एड़ी रहती है ना, चप्पल की सोल निकल गई म्हणजे अंदर का बाहर का जो नीचे का अलग टुकड़ा रहता है उसको सोल लगाने के बाद वो मजबूत हो जाती है। तो SOUL सोल उसका होमोफोन है। SOUL सोल का मतलब होता है आत्मा। वेट, WAIT वेट और WEIGHT वेट। वेट का मतलब होता है रुकना, WEIGHT वेट का मतलब होता है वजन करना। SORE सोर, सोर मतलब लगातार किसी चीज़ के अंदर से बहते रहना या कुछ सोर बहुत सूख जाना। SOUR सौर का मतलब होता है खट्टा। SOAR सौर का मतलब होता है ऊपर ऊपर उड़ना। WEAK वीक का होमोफोन है WEEK वीक। WEAK वीक का मतलब होता है निर्बल होना, बल नहीं रहना। WEEK वीक का मतलब होता है एक हफ्ता। WHETHER वेदर, WEATHER वेदर, these are the two homophones. WHETHER वेदर मतलब if or if not, whether you would like to come or not, आप आना चाहते हो या नहीं, तो असमंजस में रहता है, उसको WHETHER वेदर बोलते हैं। WEATHER वेदर का मतलब होता है हवामान। PAIL पेल का मतलब होता है घाघर। स्टील की, तांबे की घाघर रहती है ना, पानी भरते हैं जिसमें। PALE पेल का मतलब होता है उदास होना या बहुत बीमार रहते तो योर फेसेस बिकम पेल, बहुत तो यानी चेहरा बहुत सफ़ेद हो गया, झक जिसमें खून नहीं रहता है वो। TAIL तेल का मतलब होता है पूछ। TALE टेल का मतलब होता है कोई कहानी। STOREY स्टोरी, STORY स्टोरी। STOREY स्टोरी का मतलब होता है फ्लोर। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बोलते हैं ना अपन, बहुत सारे फ्लोर वाली बिल्डिंग। तो STORY स्टोरी का मतलब होता है कहानी। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको होमोफोन समझ में आ गया होंगे। तो अभी ये पेज नंबर 135 पे आगे बचा है दोस्तों। जैसे कि द शिप टिक द मार्क द करेक्ट चॉइसेस टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको करेक्ट चॉइस वाला सेंटेंस को ढूंढना है वर्ड को और उसको टिक करना है। जैसे शिप सेट ऑन डैश एट डॉन। शिप सेट ऑन सेल म्हणजे तैरना, शिप तैरेंगी ना। SALE सेल और SAIL सेल होमोफोन्स है दोस्तों। SAIL सेल का मतलब होता है तैरना, SALE सेल का मतलब होता है कम दाम में चीज़ लेना, कुछ डिस्काउंट मिलता है, अरे बहुत बड़ी सेल लगी है तो 50% आधे भाव में आपको चीज़ें मिल जाती है। सेकेंड, द लार्क, SORED सोर्ड, SOARED सोर्ड हाई इन द स्काई। तो दोस्तों डेफिनेटली SOARED सोर्ड है, क्योंकि मैंने बोला है SOARED सोर्ड का मतलब होता है ऊपर ऊपर जाना। द फार्मर्स आर डैश सिविंग सोइंग। सोइंग व्हीट, सोइंग म्हणजे बीज जमीन में बोना। द सन इज STATIONARY स्टेशनरी, STATIONERY स्टेशनरी। तो STATIONARY स्टेशनरी का मतलब होता है कोई ऐसी दुकान जिसमें आपको आपके स्टडीज़ का जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, बुक्स सब मिल जाता है। STATIONERY स्टेशनरी मतलब एक जगह पे रुका हुआ फिक्स चीज। सन इज स्टेशनरी मतलब सन फिक्स्ड है, वो कहीं जाता नहीं, कहीं आता नहीं,
अपने को ऐसा लगता है कि सन हैज़ सेट, सो सन हैज़ गॉन, बट इट इज़ नॉट मूविंग. द अर्थ इज मूविंग अवे फ्रॉम द सन, देन इट विल बी इवनिंग और नाइट. नेवर डैश योर टाइम. WASTE वेस्ट. WAIST वेस्ट का मतलब होता है कमर. वेस्ट, WAST वेस्ट म्हणजे वाया जाना. तो समय को कभी वाया जाने नहीं देना. तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है. इसमें बहुत कुछ सीखने लायक है दोस्तों, तो इसको ध्यान से देखिएगा और अपनी बुक कंप्लीट करिएगा. लीजर का पेज नंबर 133 और 134, 135 को कंप्लीट करिएगा दोस्तों. तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे. वॉच द वीडियो.